ऋषिकेश, ऋषिकेश बोल बेटा, ऋषिकेश। ऋषिकेश। सर आवाज येते सर? हाँ येतोय ऋषी, बोल. हाँ सर मग हाँ. सर फाइलम Porifera, Cycons, Skyphus, Spongilla, freshwater sponge, Eusponge, bath sponge, Phylum Cylindrita, Phylum Cylindrita. बघू शकतोस तू, सर बघू एक मिनिट. शकतोस. तुला जिथं अडशील तिथं बघू शकतोस तू. पुस्तक समोर ठेव. हा हा समोर ठेव. बढिया. हा बघू शकतोस, काय प्रॉब्लेम. सर आठवण. सर आता विसरलो आठवलं. होतो. एक बघ, एक मिनिट ऋषी. ज्यावेळेस आठवल त्यावेळेस असं बघ, आणि ज्यावेळेस तुला नाही आठवलं त्यावेळेस तू खाली बघ. हा डन. हो सर. बढिया, चलो. हा. Phylum Porifera, Cycons, Skyphus, Spongilla, freshwater sponge, Eusponge, bath sponge, Phylum Cylindrita, Phycile Portuguese manophore, Adamsia C, Mon Penatula C, Fen Gorgonia C, Fen Menandrina brain coral, Obelia Po, Yum Hydra, Orel or jellyfish, Phylum Cylindrita, Phylum Ctenophora, Pleurobrachy and Ctenoplana, Phylum Platyhelminths, Teinate, form Fasciola liver, planaria regeneration, Phylum Aschelminths, Ascarius roundworm, Bucherial filariolworm, and Xylostoma hookworm, Phylum Annelida, Nereis dioecious ferritima, Earthworm hirudinaria blood-sucking leech, Phylum Arthropoda, economically important insects, Apis, honeybee, bombyx, silkworm, lacifer, like insect, vector, Anopheles malaria, Culex, Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes yellow fever, Aedes chikungunya, gregarious pest, Locusta locust, living fossil, Limulus king crab. Other examples: butterfly, prawn, Scorpio. Phylum Mollusca, Pila, apple snail, Pinctada, pearl Sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Aplysia, sea, Dentalium, tusk shell, and Chitopleura chiton. Phylum Echinodermata, Asterias, starfish, Echinus, sea urchin, Aptidon. Phylum Echinodermata, Asterias, starfish, Echinus, sea urchin, Antidon, sea lily, Cucumaria sicumbur, and Opiura britta star. Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Psychoglossus, Phylum Chordata, Subphylum Urochordata, Tunicta, Salpadoliolum, Ascidia salpadoliolum, Subphyla Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or lanceolate, Subphyla vertebrata, class Cyclostomata, Petromyzon lamprey, Myxine hagfish, class Condystis, Scoliton dogfish, Pristis sawfish, Carcharodon great white shark, Carcharodon great white shark, Torpedo electric stingray, Trigon, stingray, torpedo electric ray, class Ostisthides, marine fishes, Exocetus flying fish, Hippocampus sea horse, freshwater fishes, Labio rohu, Catla, Clarius magur, aquarium fishes, Betta fighting fish, Therophylum angelfish, class Amphibia, Gufo, toad, rana, frog, hyla, tree frog, salamander, each type is limbless amphibia, class Reptilia, Chelon, turtle, testudo, tortoise, chameleon, tree lizard, Hemidactylus, wall lizard, Calotus, garden lizard, Crocodilus, crocodile, alligator, poisonous snakes, Naja, cobra, kangaroo, skate, Vipera, viper, class Mammalia, Ornithorhynchus, class Mammalia, Oviparous mammals, Ornithorhynchus platypus,
Oviparous mammals. क्लास एव्स राहिलं ना, एव्स क्लास एव्स. Class Aves, Corvus crow, Columba pigeon, Psittacula parrot, Stutio ostrich, Aptenids penguin, Neophron vulture. Class Mammalia, Oviparous mammals, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammals, Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camelus camel, Macaque monkey, Rattus rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common, Delphin, Bellum blue, whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion. Thank you, sir. थँक्यू सो मच. क्या बात है ऋषिकेश, बहुत ही बढिया. सगळे एकदा सगळे क्लॅप करा त्याच्यासाठी. बहुत ही बढिया. थांब, तर कुठून आहेस बेटा? शेकटा सर. शेकटा, जालन्याजवळ. बरोबर, करमडच्या पुढं. बरोबर आहे. पैठणकडचं शेकटा का? बरं, ठीक आहे. क्या बात है. ओके, बघ पोरं कसे टाळ्या वाजवल्यात. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. क्या स्पिरिट है, आई लाइक इट. यू रियली इम्प्रेस मी ऋषि, बहुत ही बढ़िया. गुड लक बेटा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. वाओ वाओ, फैंटास्टिक. नाउ दोस्तों बात करते हैं. वाओ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. हम आई थिंक वी आर डीलिंग विद दोस्तों आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में हम बात करें दैट इज आर्थ्रोपोडा. एक्सोस्केलेटन के बारे में मैंने बात की, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन. ओके, बहुत ही बढ़िया. ओके, बहुत बढ़िया. आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन के बारे में. ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोडा में, दैट एक्सोस्केलेटन होता है दोस्तों, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों, मेड अप ऑफ काइटिन. उसे कहते हैं काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. ये काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है दोस्तों. इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. नाउ ये जो काइटिन है इसके बारे में बोलते हैं, ये एक होमोपॉलीसेक्राइड होता है. ये कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों. इट इज होमोपॉलीसेक्राइड है, एक होमोपॉलीसेक्राइड. नाउ व्हाट इज मीन बाय पॉलीसेक्राइड दोस्तों? पॉलीसेक्राइड मींस जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड होते हैं, इसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड. जिसमें मोनोसेक्राइड होते हैं उसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड है उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइड. और होमो मींस जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड है दोस्तों. सो इट्स मोनोसेक्राइड इज, इसका जो मोनोसेक्राइड है वो होता है दोस्तों, इट्स मोनोसेक्राइड इज एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन. क्या नाम है उसका? इट्स मोनोसेक्राइड इज दोस्तों इज एन एसिटिल. एन एसिटिल एमसीक्यू, कौन सा अमाइन? ग्लूकोज अमाइन. एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन, इसे बोलते हैं दोस्तों नाग. NAG, उसे बोलते हैं नाग. एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन. इट इज अ होमोपॉलीसेक्राइड. नाउ ये जो काइटिन है दोस्तों, ये काइटिन है, इट इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आफ्टर सेलुलोज. सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आफ्टर सेलुलोज. कंपाउंड आफ्टर सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज सबसे ज्यादा है. ये दोस्तों काइटिन. और ये जो काइटिन है, इट इज वाटर इम्परमेबल. इट इज इम्परमेबल टू वाटर. impermeable to water. It is impermeable to water. It is impermeable to water. और दोस्तों that is fungal cell wall is also formed by, it form cell wall in fungi. It form दोस्तों, it form, that is it form cell wall in fungi. ये ऐसा मिक्स क्वेश्चन आता है, that is exoskeleton of arthropod and cell wall of fungi is formed by which compound? तो आंसर दोस्तों that is काइटिन. क्या आंसर होगा? आंसर शुड बी काइटिन. और इसे काइटेनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. इज दैट ओके दोस्तों? यह है एक्सोस्केलेटन, यह है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड. ये ठीक है, ये मुझे लगता है ये हमने बात नहीं की थी. दिस इज अबाउट द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा. ओके, आगे बढ़ते हैं.
ओके नाउ दोस्तों सपोज मान लो कि जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स, जो नर्वस सिस्टम है दोस्तों, जो नर्व कॉर्ड होता है, नर्व कॉर्ड, ये मैंने इसके पहले बात की है, वो होता है दैट इज अ डबल वेंट्रल एंड सॉलिड। कैसा होगा? डबल वेंट्रल एंड सॉलिड, ये नर्व कॉर्ड होता है डबल। और सेंस ऑर्गन्स आर लाइक दोस्तों, नंबर 1 एंटीने। नाउ ये एंटीने क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोस्तों एंटीने? इनका काम क्या है? एंटीने क्या करते हैं दोस्तों? एंटीने जो होते हैं, नाउ ये जो एंटीने होते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ ये होते क्या है। ये जो एंटीने दोस्तों, दे हेल्प इन सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है उसे सेंस करते हैं। सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, इज देयर एनी फूड, इज देयर एनी एनिमी, तो ये एंटीने होते दोस्तों, एंटीने। अच्छा कॉकरोच ला होता ना एंटीने, वही है ये। फिर दोस्तों फिर होते हैं दोस्तों आईज। आईज इनका काम होता है सेंसेशन ऑफ लाइट। आईज का काम है दोस्तों सेंसेशन ऑफ लाइट, सेंसेशन ऑफ लाइट। और दीज आर फॉर दोस्तों विजन। किसके लिए होते हैं? फॉर विजन, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर साइट। एक शब्द है SIGHT, साइट म्हणजे बघणे, लक्षात ठेवा, बघणे, दिसणे, त्यासाठी असतात आईज. आणि कॉकरोच मध्ये लक्षात ठेवा, मी आईज वर नंतर येतो, नंतर नंबर 3 ला आहे दॅट इज स्टॅटोसिस्ट. स्टॅटिक म्हणजे बॅलेन्स. सो दीज आर द सेंस ऑर्गन फॉर बॅलेन्स. स्टॅटोसिस दोस्तों, दीज आर सेंस ऑर्गन फॉर बैलेंस ऑफ बॉडी, फॉर बैलेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, फॉर बैलेंस ऑफ बॉडी। खुद के बॉडी को बैलेंस अगर करना है तो इसलिए स्टैटोसिस्ट होते हैं। नाउ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोडा में दोस्तों जो आईज है वो 2 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ आईज याद रखो दोस्तों, बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ आईज की। तो 2 टाइप के आईज है, एक होते हैं सिंपल, दूसरे होते हैं कंपाउंड। नाउ किसे कहेंगे? सिंपल आई, सिंपल आई। और दोस्तों किसे कहते हैं? कंपाउंड आई। वाह, किसे कहेंगे? सिंपल आई और कंपाउंड आई। सिंपल आई अपने जो आईज है ये सिंपल है, इसे कहते हैं दोस्तों सिंपल आई। और किसे कहेंगे? कंपाउंड आई। ना प्लीज पे अटेंशन, सिंपल आईज मींस दोस्तों ये कंपाउंड आईज में बहुत सारे मल्टीपल यूनिट होते हैं। ओके, उसे ओमेंटिडिया कहा जाता है, आगे चल के है ये सब सिलेबस में। ओके, ये जो सिंपल आईज है दोस्तों, ये इट इज आल्सो नोन एज ऑसेलस। ये भी कहा गया है कॉकरोच में, इसे कहा गया है ऑसेलस। दे आर, ये जो सिंपल आईज होते, दे आर यूजुअली नॉट वेल डेवलप्ड। ये इतने ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं सिंपल आईज, रुडिमेंटरी होते हैं। पर कंपाउंड आईज दोस्तों, इट इज अ पेयर ऑफ आई लोकेटेड ऑन डॉर्सल। मैं दिखाता हूं, लोकेटेड ऑन डॉर्सल सरफेस, लोकेटेड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। हेड के डॉर्सल सरफेस के यहाँ पे कंपाउंड आईज होते हैं दोस्तों, एक पेयर है, पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, एंड दे कंटेन मेनी यूनिट। ये कंपाउंड आईज में दे कंटेन दोस्तों, दे कंटेन्स मेनी यूनिट। सिर्फ याद रखो मेनी यूनिट्स, और उन यूनिट को कहा जाता है दोस्तों नोन एज, उन यूनिट को कहा जाता है ओमेटिडिया। ये याद रखो, ये कॉकरोच में है ओमेटिडिया। दीज आर द यूनिट प्रेजेंट इन कंपाउंड आईज। और ये जो कंपाउंड आईज है दोस्तों कॉकरोच की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड आईज इन कॉकरोच दे बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। तो दे आर फॉर इन कॉकरोच, दे आर फॉर दोस्तों, ये कंपाउंड आईज का जो फंक्शन है कॉकरोच में, दे आर फॉर, इसे कहते हैं उनका जो विजन होता है दोस्तों, उस विजन को कहा जाता है दैट इज, ये नॉक्चर्नल विजन के लिए है। नॉक्चर्नल विजन म्हणजे नाईट विजन साठी असतात, लक्षात ठेवा। कुठल्या विजन साठी? नाईट विजन साठी। आणि एक मोझॅक विजन, याचा अर्थ मी नंतर सांगेल,
फक्त सध्या माहित असू द्या. मोजॅक विजन, मोजॅक विजन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. देन नॉक्चर्नल विजन होता है, रात के लिए नॉक्चर्नल विजन के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं. और ये जो कंपाउंड आईज है दोस्तों, यहाँ पे दे आर वेरी सेंसिटिव बट हैव लेस रेजोल्यूशन. मोर सेंसिटिव और लेस रेजोल्यूशन होता है. मतलब क्या है, मोर सेंसिटिव, कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो इनके सामने उन्हें दिखता है पर वो कौन है वो समझ में नहीं आता, इसे कहते हैं लेस रेजोल्यूशन. इमेज कैसी है, मोर सेंसिटिव, ये मैं बाद में समझाता हूं या फिर अभी समझाता हूं, जस्ट वेट. मोर सेंसिटिव एंड लेस रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन. चलो, ये उसके कुछ फीचर्स है दोस्तों, कंपाउंड आइज इन कॉकरोच. तो ये है, थोड़ा सा मैं जस्ट वेट, ये ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, आधा अधूरा नॉलेज. विल डिस्कस इन डिटेल, जस्ट वेट. ओके, compound eyes in cockroach. Cockroach. See this. मक्खी देखी होगी आपने, मक्खी मूवी देखा होगा ना, मक्खी. See this. ओके, देखा आपने, ये है, ये है, इन्हें कहते हैं ओमेंटिडिया. तो दोस्तों कंपाउंड आइज ऑफ इंसेक्ट है, ये ओमेंटिडिया होते हैं, कंपाउंड आइज है. मक्खी मूवी देखा होगा ना आपने, ये है कंपाउंड आइज. दो इमेज लाता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए. मान लो ये एक इमेज है दोस्तों, ओके, एक इमेज है, जस्ट वेट. See this. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. ये जो चाहिए तो हो गया. ये है दोस्तों कॉकरोच. वाओ, ये है कॉकरोच, याद रखो, ये है कॉकरोच दोस्तों, ये है कॉकरोच. नाउ इंसेक्ट के कई सारे फीचर है आर्थ्रोपोडा के, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के कई सारे फीचर है दोस्तों. यहाँ पे देखते हैं कौन से फीचर है. तो ये बड़ा सा मैंने कंपाउंड आइज निकाला है. नाउ प्लीज पे टेंशन, आज पहली बार दो डायग्राम एक साथ. ओके दोस्तों, ये है कॉकरोच, समझे. ओके, तो आपको ये लेबलिंग पता होनी चाहिए, लेबलिंग क्या है. तो ओके, पहले तो मैं समझाता हूं. ये बिलोंग टू क्लास इंसेक्ट. हाउ टू रिमेंबर, 3 पेयर्स ऑफ लेग, 1 2 और 3. 3 लेग है, 1 2 3. नाम अलग अलग होते, प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग्स. और ये जो अपेंडेजेस है वो दोस्तों ज्वाइंटेड है. अगर नहीं दिख रहे तो दिखाता हूं, जस्ट वेट. ये ज्वाइंटेड, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है. ये ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा. ज्वाइंटेड अपेंडेजेस दिख रहा है, इसे कहते हैं ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. यस और नो, शो मी थम्स अप. ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. ओके, नाउ मक्खी और पिक्चर, आई नो दैट. तो दोस्तों ये क्या है, व्हाट आर दिस, दीज आर द फिलीफॉर्म एंटीने. एमसीक्यू, दीज आर द फिलीफॉर्म एंटीने. ये ऐसे होते हैं टू सेंस द सराउंडिंग. ये फिलीफॉर्म एंटीने दोस्तों, फिलीफॉर्म एंटीने फॉर सेंसिंग द सराउंडिंग. समझ में आ रहा है, ये वाला और ये वाला, इसे कहते हैं एंटीने. नाउ दोस्तों ये तो उसके विंग्स है, इसे 4 विंग्स कहा जाता है, ये टेगमिना है, हैंड विंग्स. नाउ यहाँ पे दोस्तों ये जो है, ये काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है. ये एब्डोमेन है उसका, ये थोरैक्स होगा, ये एब्डोमेन है. यहाँ पे काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, याद रखो, यहाँ पे काइटेनियस एक्सोस्केलेटन है दोस्तों. नाउ ये है कंपाउंड आइज. कंपाउंड आइज कॉकरोच में, दीज आर फॉर विजन. और ये देखो, ये कंपाउंड आइज दोस्तों इंसेक्ट के फीचर है, कंपाउंड आइज. इसमें ऐसे बहुत सारे यूनिट है, दिख रहे हैं आपको. इन्हें कहते हैं, छोटे छोटे यूनिट है, इन्हें कहेंगे ओमेंटिडिया. ये क्या है दोस्तों, व्हाट इज द इमेज, ये कंपाउंड आइज होते हैं. अपने आइज ऐसे है क्या, नहीं, ये कंपाउंड आइज है. और इसमें दोस्तों इसके यूनिट होते हैं which contain many यूनिट, उन्हें कहते हैं दोस्तों ओमेटिडिया. क्या नाम होता है, ओमेटिडिया. इसका जो विजन होता है इसे कहते हैं दोस्तों मोजैक विजन. मैं समझाता हूं आपको, मोजैक विजन मतलब क्या है.
व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मोझॅक व्हिजन? मोझॅक व्हिजन म्हणजे तुम्ही आरशासमोर आहेत, लक्षात ठेवा, एक आरसा आहे, तुम्हाला एकच इमेज दिसेल तुमच्या समोर. त्या आरशाचे 2 तुकडे झाले 2 इमेज, 4 तुकडे झाले 4 इमेज, त्या आरशाचे 10 तुकडे झाले तुमच्या 10 इमेज दिसतील. आरशाचे 100 टुकड़े झाले त्या 100 इमेज मध्ये तुम्ही दिसताल. यस और नो? आप दिखोगे या नहीं? ओके अगर आपके पास मिरर है तो उसके 100 पार्ट हो गए तो आप 100 पार्ट में कुछ ना कुछ आपको पार्ट दिखेगा. दैट कॉल्ड एज अ मोज़ेक विजन. तो एक ही सपोज इमेज है, उसके एक ही ऑब्जेक्ट है उसके सामने, पर उसके 100 और थाउजेंड्स ऑफ इमेज बनते हैं उसके रेटिना के ऊपर. इस स्ट्रक्चर को, इस विजन को कहा जाता है मोज़ेक विजन. इस विजन को कहा जाता है दोस्तों मोज़ेक विजन. और कॉकरोच इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, डायोसियस एनिमल है कॉकरोच, मेल और फीमेल होता है दोस्तों. कॉकरोच में क्या होता है? मेल और फीमेल. ये मेल कॉकरोच है, कैसे तो मैं बाद में बता दूंगा. तो मेल और फीमेल होता है क्योंकि अगर ये जो विंग्स है ये बॉडी के भी नीचे अगर आ रहे हैं, इधर फीमेल के यहाँ ही पे एंड हो गए, बॉडी इसके बॉडी के नीचे आते हैं दोस्तों, तो इसे मेल कॉकरोच का फीचर होता है ये. नाउ तो ये कंपाउंड आइज है फॉर मोज़ेक विजन. और इनका जो ये होता है विजन जो है और जो रिजोल्यूशन होता है, ये जो मोर सेंसिटिव एंड लेस रिजोल्यूशन है. मोर सेंसिटिव मींस सपोज मान लो कि कहीं पे 2 कॉकरोच है, 2 मेल कॉकरोच, और कहीं पे कॉर्नर पे गप्पे लड़ाए, चाय पी रहे मान लो. ओके चाय के ठेले के ऊपर 2 कॉकरोच चाय पी रहे, मींस कॉकरोच वाला ही चाय है, उनका ही, किसी ने तो भी बनाया है या फिर कहीं तो भी किसी ने तो भी लाया है. तो मान लो तो गप्पे लड़ा रहे हैं और फिर दूर से कोई तो भी एक फीमेल कॉकरोच आया है. तो मेल कॉकरोच बोलता है तुझे देखा क्या कौन आ रहा है? तो ठीक है, एक मेल कॉकरोच दूसरे मेल कॉकरोच, हाँ दिखा दिखा, हाँ पर यार कौन है मुझे पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा. ठीक है ठीक है, थोड़ा नजदीक आने देते हैं. आप भी समझा क्या कौन है? नहीं यार पहचान नहीं सकता हूं मैं, और नहीं और नहीं. उसके सामने से वो फीमेल कॉकरोच चला जाता है, पर वो कौन सा फीमेल कॉकरोच है वो पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि सेंसिटिविटी तो है, कोई तो भी आ रहा है ये तो दिख रहा है, पर रिजोल्यूशन कम है. याद रखो इसे कहते हैं दोस्तों, ये इसे है दोस्तों मोज़ेक विजन. जो है मोज़ेक विजन, ये जो होता है मोज़ेक विजन, उसका और एक फीचर दैट इज मोर सेंसिटिव है. ये फेमस एमसीक्यू है. मोर सेंसिटिव है एंड लेस रिजोल्यूशन है. कोई तो भी आ रहा है ये दिख रहा है, पर कौन आ रहा है ये नहीं दिख रहा है. मोर सेंसिटिव और लेस रिजोल्यूशन है. क्लैरिटी कम है, क्लैरिटी कम है. ओके क्लैरिटी कम है. समझे दोस्तों? और यहीं पे लिखता हूं, उस आप थोड़ा नीचे लिखो, मैं यहाँ लिखता हूँ नॉक्टर्नल विजन होता है. कॉकरोच ना कभी भी ना, याद रखो अभी आप पढ़ाई करते होंगे, नॉक्टर्नल विजन होता है दोस्तों, तो दिन में कहीं तो भी गुम हो जाते हैं. ओके दिन में गुम हो जाते हैं और रात के 10 बजे के बाद सब सोने गए तो फिर किचन पे हमला कर देते हैं. हमला तो इधर उधर आप पानी पीने जाओ रात 10:30 11 बजे या फिर सब सोने के बाद, तो कुदर भी कॉकरोच है, क्योंकि वो रात को बाहर आते हैं. रात को बाहर आते हैं दोस्तों, याद रखो. और जो और एक चीज है, ओके ओके और एक चीज है दोस्तों, तो हमेशा याद रखो. तो ये नॉक्टर्नल विजन का कॉन्सेप्ट होता है. तो कंपाउंड आइज मैंने कहा, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सब जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ओमैटिडिया है. क्या है ये? ओमैटिडिया. ओमैटिडिया. ये कॉकरोच में अगर देखा जाए तो 2000 ओमैटिडिया होते हैं एक आइज में, और दूसरे आइज में 2000, तो 4000 टोटल ओमैटिडिया होते हैं दोस्तों. ये कंपाउंड आइज के बारे में कहा. ये होते हैं एंटीने, किस लिए? टू सेंस द सराउंडिंग, कैसा है, इनिमी है, फूड नजदीक है या नहीं, या फिर वाटर है क्या नजदीक, ऐसा ये सेंस करने के लिए एंटीने होते हैं. और स्टैटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ बैलेंस, उनकी बॉडी बैलेंस करने के लिए. जैसे हमारे इसमें क्या है, इनबिल्ट सिस्टम है हमारे बॉडी में. हमारा जो सेरेबेलम है ना छोटा यहाँ पे, वो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है. या फिर हमारे जो इंटरनल ईयर होते हैं वहां पे भी कुछ ऐसे रिसेप्टर है, ये जो हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं. अभी मुझे पता है मेरी बॉडी ऐसे इधर राइट साइड में झुक रही है, मुझे पता है कि मेरा हैंड राइट साइड का हैंड ऊपर है, अभी मिडल पे है, अभी लोअर पे है. ये मेरे सेरेबेलम की वजह से मुझे पता चलता है, पर उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, तो उनमें स्टैटोसिस नाम के ऑर्गन होते हैं. इज दैट क्लियर? ये हमने देखा. ओके त्यांना खूप इमेज नाही, त्यांना इमेज खूप दिसत नाही, त्यांना एकच इमेज दिसते, पण रेटिनावर तशी इमेज दिसते. ओके एकाच ऑब्जेक्टच्या सेव्हरल इमेज तयार होतात रेटिनावर, पण त्यांना दिसताना ती एकच दिसते, पण त्याच्यामुळे त्याला कंपाउंड आइज म्हणले. ठीक आहे, मी कॉकरोचचं डिस्कशन आणखी केलेलं नाहीये, एक सांगवलं तुम्हाला. ओके डन.
ये हो गया दोस्तों कॉकरोच के बारे में। आर्थ्रोपोडा का शायद, हाँ। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माल्फिगियन ट्यूबल्स एंड ऑल दैट, ये भी बात करेंगे, जस्ट वेट। कि ये मैंने बोला था कि माल्फिगियन ट्यूबल्स क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है माल्फिगियन ट्यूबल्स एंड ऑल दैट, ताकि आपको समझ में आए। ये इमेज देखो, ये आपके एनसीईआरटी में इमेज है, यही लेता हूं मैं, ये फेमस इमेज है दोस्तों। अरे यार दूसरा लेते हैं। ये सब सिलेबस में हमारे। पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का नाम होता है, और कॉकरोच बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। कॉकरोच बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। नाउ ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं हम। पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना के डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है, पेरी प्लैनेटा जो अमेरिकाना है म्हणजे कॉकरोच, उसकी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, ये है फेरिंग्स, ये फिर से क्या है, व्हाट आर दिस आर द कंपाउंड आइज। ये देखो ये कंपाउंड आइज है, थोड़े से मैं बाहर भी निकलता हूँ, ये कंपाउंड आइज है। ये सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, याद रखो कॉकरोच में सलाइवरी ग्लैंड है, उसके लिए सलाइवरी रिजर्वायर है, ये ईसोफेगस है। और ये क्रॉप नाम का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड होता है ईसोफेगस के नीचे, जैसे स्टमक है वैसे क्रॉप होता है। फिर गिजार्ड है, और फिर दोस्तों मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा पार्ट है, ये दोस्तों फोरगट, ये मिडगट, और ये छोटा सा हाइंडगट। आपको अगर दिख रहा होंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है, these are the Malpighian tubules. These are दोस्तों Malpighian tubules, and these Malpighian tubules present at the junction of, याद रखो, hindgut and midgut। ये hindgut और midgut के जंक्शन पे है, इन्हें कहते हैं Malpighian tubules। ओके, इन्हें कहते हैं दोस्तों 100 से भी ज्यादा होते हैं। ये होता है hindgut, ये आपको जो बड़ा साइज वाला दिख रहा है ना, ये है hindgut, और ये छोटे साइज वाला दिख रहा है, ये है दोस्तों midgut। यहाँ पे लिखा भी है, देखो देखो, यह है midgut। तो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट देयर इज अ माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं दोस्तों, सपोज माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको उसके बॉडी से लेते हैं, और फिर ये जो कोलॉन वगैरह इसमें डालते हैं, और फिर वो रेक्टम से एनस से बाहर जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है, याद रखो, यह है माल्पेगियन ट्यूब्यूल्स। सो दीज आर द माल्पेगियन ट्यूब्यूल्स। क्या है दोस्तों, बात किसकी कर रहे हैं, दीज आर द माल्पेगियन ट्यूब्यूल्स। Malpighian tubule, Ghian tubules, याद रखो। These are the दोस्तों that is organ of excretion, organ of excretion in class insecta, excretion in insects, और क्लास इंसेक्टा, इंसेक्ट में हो दोस्तों माल्फिगियन ट्यूबल्स, याद रखो, ये है माल्फिगियन ट्यूबल्स। ये सिलेबस में है, ये डायग्राम हमारे सिलेबस में है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे लगता है सेक्सुअलिटी के बारे में बात की है क्या, ओके। ग्रीन ग्लैंड के बारे में मैंने कहा कि ग्रीन ग्लैंड क्या होता है दोस्तों। ग्रीन ग्लैंड जो है दोस्तों, दिस ग्रीन ग्लैंड्स, मैंने कहा है ग्रीन ग्लैंड्स, या फिर उन्हें कहा जाता है दोस्तों एंटेनल ग्लैंड्स। इसका डायग्राम नहीं दिखा इतना अच्छा। एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स दोस्तों ये क्या है, दीज आर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन इन crustaceans, organ of excretion in crustaceans। now crustaceans मतलब दोस्तों झींगे, प्रॉन्स, प्रॉन्स, अक्षरा कोळंबी, प्रॉन्स, क्रुस्टेशियंस में, इसमें भी एक क्लास है दोस्तों क्रुस्टेशियंस में। ओके, याद रखो। नाउ
कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों जो अनयूजुअल एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, और सेक्सुअलिटी के मैंने बात की है, सेक्सुअलिटी बद्दल बोललोय का मी, झालं डिस्कशन, हेच बाकी होतं. आता लक्षात ठेवा, कॉकरोच मध्ये दोन गोष्टी मला काय महत्वाच्या बोलायच्यात. जस्ट काय अनयुजुअल एक्झाम्पल आहेत. सिल्वर फिश, नाव जरी फिश असेल, बिलोंग टू कॉकरोच. क्रे फिश, नाम में फिश है बट इट बिलोंग टू दोस्तों दैट इज सॉरी, इट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. आई एम सो सॉरी, नॉट कॉकरोच. सिल्वर फिश, क्रे फिश, ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं दोस्तों. नाउ सिल्वर फिश, क्योंकि ये बहुत फेमस एमसीक्यू है. ये नाम सिल्वर फिश है इसका, सीधे ये सिल्वर फिश है. ओके, सिल्वर फिश, बट इट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. दोस्तों इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है. इंपॉर्टेंट है, एक इमेज इंपॉर्टेंट है, याद रखो. ये दोस्तों मान लो सिल्वर फिश, ओके, और इट बिलोंग टू क्लास आर्थ्रोपोडा. ये सिल्वर फिश है, इट बिलोंग टू क्लास आर्थ्रोपोडा. याद रखो, इट बिलोंग टू क्लास आर्थ्रोपोडा. दिस इज ए सिल्वर फिश. सिल्वर फिश, कुछ अनयूजुअल एग्जांपल है जो मैं देना चाहूंगा. सिल्वर फिश, सिल्वर फिश बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, याद रखो. और कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, दैट इज क्रे फिश. नाम भले क्रे फिश है बट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. नाम में फिश है, लगता है हमें ये फिश नहीं होगा, बट इट बिलोंग टू दोस्तों आर्थ्रोपोडा. क्रे फिश, याद रखो, दिस इज एन क्रे फिश. ओके, क्रे फिश. अरे अरे ये तो ओके. मान लेते हैं ये है क्रेफिश. देखो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन दिख रहा है क्या? काइटेनियस एक्सोस्केलेटन दोस्तों ये भी क्रेफिश है. आप सर ये इमेजेस क्यों दिखा रहे हो? कि बच्चों आपको पता चले कि बाबा ये फिश नहीं है, इनका नाम सिर्फ फिश है. ये है एक्चुअली आर्थ्रोपोड्स. ये क्या है? दे आर एक्चुअली आर्थ्रोपोड्स. इनका नाम है दोस्तों क्रेफिश. इन्हें कहा जाता है क्रेफिश, एक्चुअली आर्थ्रोपोड है. और एक दो एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं, दैट इज अ सेंटीपेड एंड मिलीपेड. ठीक है, सेंटीपेड और मिलीपेड, दे आर आल्सो बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. बस मिलीपेड अँड सेंटीपेड, बस आलं. चला, मिलीपेड अँड सेंटीपेड काय कळायला पाहिजे. मिलीपेड म्हणजे ते पैसा जो असतो ना पावसाळ्यामध्ये येतो, तो म्हणजे मिलीपेड आहे, पैसा. आणि गोम म्हणजे सेंटीपेड आहे. लक्षात ठेवा, हे एवढ्या 4 इमेजेस तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे. सेंटीपेड वर्सेस मिलीपेड हे तुम्हाला 4 इमेजेस कळणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. ठीक आहे, हा कळाला क्रेफिश आणि हा झाला सेंटीपेड मिलीपेड. अरे सॉरी, हा क्रेफिश. हा मिलीपेड म्हणजे काय? मिलीपेड म्हणजे लक्षात ठेवा, याला काय म्हणता तुम्ही? ओके, टाइम झाला. बरं, टाइम झाला माहिती आहे. याला मिलीपेडला काय म्हणता तुम्ही? पैसाच म्हणता ना. हा आहे पैसा. मिलीपेडला काय म्हणता? ओके, मामाची गाय वगैरे माहिती आहे तुम्हाला? हा पैसा आहे. मिलीपेड किंवा मामाची गाय हा पैसा आहे. लक्षात ठेवा, पैसा. लगेच हा काय करतो? सर्क्युलर होऊन बघतो. आणि सेंटीपेड म्हणजे काय? गोम आहे. सेंटीपेड म्हणजे गोम. ऑल ऑफ दीज आर आर्थ्रोपोड्स. ये सभी आर्थ्रोपोड है दोस्तों, सभी आर्थ्रोपोड है. रुकते हैं, ठीक है, रुकते हैं और कल बात करेंगे दैट इज फाइलम मोलुस्का के बारे में. ठीक है, ओके, याद रखो. ठीक है.
वो फिश नेमिंग वो क्यों, क्योंकि वो दोस्तों एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर, इसलिए उसका नाम है। ठीक है, खेकड़ापना है, खेकड़ापना है, यस।